So students, first I start the numericals of electricity chapter. Okay, one by one we will do the calculation. Okay, so first question is a number of electrons in 1 coulomb of charge. We have to find out a number of electrons. Okay, number of electrons in 1 coulomb charge. Okay, so you know that 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हाउ मच? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. 1.6 इंटू 10⁻⁻19. Okay, so 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, if charge is this, then number of electron is 1. This is charge. Okay, this is number of electrons. Okay, so if we say if charge is 1 coulomb, okay, then what will be the number of electrons will be equal to 1 by 1.6 into 10⁻⁻19. Yes or no? Okay, then that will be equal to 10⁻⁻19 by 1.6 by 1.6. Okay, that we can say that is equal to 6.25 into 10⁻18. Okay, so we find out that 6.25 this much electrons constitute 1 coulomb charge. Okay, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. देखो, हाउ मच वर्क इज डन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क, दैट इज W कितना है, हाउ मच वर्क इज डन. ओके, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन चार्ज इज मूविंग. ओके, चार्ज का Q कितना है, चार्ज दैट इज 2 coulomb. ओके, फ्रॉम ए पॉइंट 118 volts, दैट मीन्स 118 volts टू 120 volts मूव हो रहा है. ओके, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, V विल बी इक्वल टू 10 volt. ओके, Q इक्वल्स टू 2 coulomb. Q equals to 2 coulomb. Okay, then so we know that V is equal to, that is V is 10, so 10 is equal to W by Q. Q कितना है 2.
Okay, so W is equal to how much? So W is equal to 10 into 2, that is 20. That is W is work, that is 20 joule. So how much work done? 20 joule. Okay, the next question is how much energy is given, how much energy is similar to work. Okay, how much energy is given, that means E, which है how much energy is given, okay, to each coulomb of charge, to each coulomb, ठीक है, that means for 1 coulomb, 1 coulomb के लिए पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, that means पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V is equal to 6 volt. Okay, we have to put the formula. What formula? So you can say V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. V is how much? 6, that is equal to W, वर्क डन मतलब एनर्जी में चाहिए, और कूलम चार्ज मीन्स 1. सो W इज 6 into 1, that is 6 joule. Okay, then comes to next question. Okay, so we have to remember all these formula. Then another formula question is based on I is equal to Q by T. The electric bulb draws a current 0.25 ampere. That means current कितना है? I is 0.25 ampere, 0.25 ampere. That is current this much. Charge Q, okay, it is this much. Asked an electric bulb draws a current 0.25 ampere okay, for 20 minutes. And that means T time is 20 minutes, that is equal to 20 into 60. Okay, that is 1200 second. Okay, then we know that I is equal to how much? I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Then I is how much? 0.25. It is 0.25 is equal to Q by T. T कितना है? 1200 second, that is 1200. Then Q is equal to 0.25 into 1200, that is equal to 300 unit of charge is coulomb. Okay, so the amount of charge flows through the circuit is 300 coulomb. Okay, then next question. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Then calculate resistance between these points. Okay, so we know that R is equal to, that means resistance is equal to V by I, and potential difference by current. ये हमें पता है. क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 0.1 वोल्ट. दिस इज 0.1 वोल्ट बाय I. करंट कितना है? 2 एम्पियर. ओके, देन इट विल बी 0.1 by 2, that is equal to 0.05 ohm. That is resistance is 0.05 ohm. Okay, then next
Next question, a simple circuit has 24 volt battery, so V is equal to 24 volt, and a resistor 60 ohm, that means R is 60 ohm. Then what will be the current in the circuit, that means पूछा है I कितना है. Okay, then resistance of the connecting wire is negligible है उसमें, तो करंट कितना है in that R is equal to V by I, that means 60 is equal to V 24 by I, that means I is equal to 24 by 60, that is equal to 0.4 ampere. 0.4 ampere. The next question is, an electric iron draw a current 3.4 ampere. Okay, I कितना है 3.4 ampere. Okay, from 220 volt supply line, that means V is equal to 220 volt. Okay, then what current will this electric iron draw when connected to 100 volt supply line? So if it is connected to 110 volt supply line, then how much current it will draw? Okay, so from the first case we have to find out the R. This case to R, so R is equal to how much? V by I. R is equal to V by I, that is V is equal to 220 volt by I is equal to 3.4, so resistance become 64.7 ohm. 64.7 ohm. Okay, so next case R will be equal to V by I, that means R is equal to V by I, so R remains same, that is 64.7 is equal to V is how much? 110 by I current, so I will be how much? 110 by 64.7, that is equal to 1.7 ampere. 1.7 ampere. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर. ओके, लेंथ कितना है? L इज इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 to the power minus 6 meter square, area of cross section, and resistance R, okay, is equal to 2 into 10 to the power minus 2 ohm. Okay, then resistivity, okay, that is rho is equal to RA by L. resistivity में है, so rho is equal to RA by L. okay, so R का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power minus 2. area of cross section, A is area of cross section, that is 1.7 into 10 to the power minus 6. 1.7 into 10 to the power minus 6 by length is how much? That is 2. Okay, so we got 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर. क्योंकि ओम मीटर क्यों है? दैट इज ऊपर में है RA बाई L, सो R का आ गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर बाई L का मीटर, सो कट होने के बाद हमें मिला ओम मीटर. तो कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मीटर है. ओके, so diameter is given 0.5 meter.
डायमीटर इतना है। ओके, देन रेजिस्टिविटी दिया गया है, रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ ohm meter. Okay, resistivity is this much. Okay, then what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? मतलब लेंथ कितना होगा सो दैट उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम होगा, R 10 ओम होगा। ओके, R 10 ओम, सो लेंथ कितना है। ओके, सो हमें फास्ट क्या करना है, उसका हमें चाहिए ρl/a, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले फाइंड आउट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, क्योंकि फॉर्मूला है में ρ = RA/L है। ओके, वहाँ से हमारा दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ। सो रेजिस्टेंस गिवन, ओके, लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, ρ गिवन, सो एरिया इज नीडेड। ओके, so first our work is to find area of cross section. Okay, let's, so diameter कितना given है, diameter is given 0.5, okay, 0.5 mm। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस उसका हाफ है, डायमीटर का हाफ। ओके, दैट मीन्स 0.5/2। ओके, देन इट विल इक्वल टू 0.25 mm है। ओके, अगर 0.25 mm है, लेकिन हमें क्या है चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि सभी मीटर में है, सो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर कितना हो जाएगा, मीटर के लिए क्या करेंगे, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ओके, दिस इज द रेडियस। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है A इक्वल टू, इसका एरिया ऑल्सो क्या है, सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। Okay, so we put pi is equal to 22/7। okay, r², r is 0.25 इंटू 10⁻⁻3, ये r है, सो इसका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बिकम्स द πr²। So then we can find out it is equal to 0.1964 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेजिस्टिविटी RL सो भी मिल गया। सो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल ρ इक्वल टू RA/L। okay, so ρ is given 1.6 into 10⁻⁸। okay, R is 10, then R is equal to, R is given 10 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मिला 0.1964 इंटू 10⁻⁶। देन बाई L, लेंथ L इज 1.6 इंटू 10⁻⁸। so L becomes this much, that is equal to 1964/16, that is equal to 122.7 meter. okay, so this much is the length of the copper wire. okay, then on the same question another option is there, that is if how much does the resistance change if diameter is double। अगर diameter double हो गया, okay, then उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा diameter चेंज होने से। ओके, सो रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, आर इज इक्वल टू रू एल बाई ए, एरिया मतलब रेडियस इज सेम एज डायमीटर. ओके, सो व्हेन द डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर डबल हो गया 2 टाइम्स. ओके, देन रेजिस्टेंस का कितना होगा, 2 टाइम्स होने से 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 टाइम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ओम रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम. क्लियर, 6 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. 6 ओम रेजिस्टेंस को क्या किया गया, ठीक है, डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, उसको फोल्ड करके डबल किया गया. ओके, द न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा. ओके, देखो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा. सो 6 ओम का रेजिस्टेंस था, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, देन रेजिस्टिविटी ओम से था. ओके, दैट इज R इज इक्वल टू रू L बाय A, दैट इज R इज 6, देन रू इंटू L बाई A इसे था. सो जैसे कि वेयर को डबल किया गया, फोल्ड करके क्या किया गया, डबल किया गया, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ये सुनो, सो लेंथ हाफ मतलब L/2. ओके, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, फोल्ड किया गया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल मतलब 2A हो जाएगा. ओके, देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द डबल्ड अप वेयर इज R. सो R लेट R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं रू L हो गया कितना, L/2 RL बाई A कितना हुआ 2A. सो कितना हो जाएगा, रू L बाई क्या हो जाएगा, बाई 2A इधर कम्स बिलो, सो इट विल इक्वल टू 4A. ओके, सो इन फर्स्ट केस क्या मिला था हमें, 6 इज इक्वल टू रू L बाई A. सेकेंड में हमें मिला R इज इक्वल टू रू L बाई 4A. दैट मीन्स R बाई 6, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ओके, सो 2/1 अगर करेंगे देन इट विल बी R बाई 6. ओके, R बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, सब सेम है, ओनली 1/4 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज 4R इज इक्वल टू 6. सो R इज इक्वल टू 6/4, that is equal to 1.5 ohm. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 4 रेजिस्टेंस है, ईच वैल्यू 1 ओम, मतलब 4 रेजिस्टेंस ऐसे कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड हुआ है, 1 2 3 4. सो 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हुआ है. ओके, ईच का वैल्यू है 1 ओम, दिस इज 1 ओम ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है. देन उसका रिजल्टेड रेजिस्टेंस या हम बोल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, आर इफेक्टिव. तो इस सीरीज कनेक्शन है, मतलब क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे हम सीरीज में निकलते हैं. सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 4 ओम होगा. ओके, सो दिस विल इक्वल टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन ए सीरीज ऑफ अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम. ओके, ऐसे ही डायग्राम है,
ये हमारा बैटरी, ओके। सो इधर 1 रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, so this is 6 ohm and this is 4 ohm, okay. The resistance of 6 ohm is connected series with the 4 ohm and potential difference of this is our 20 volt is applied across the connection. Then calculate the current through the circuit, मतलब current I कितना है and potential difference across 6 ohm, potential difference across the 6 ohm resistor, through the 6 ohm resistor how much is the potential difference, okay. तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें फास्ट क्या करना होता है, ओके, उसको सर्किट डायग्राम से हम बनाएंगे पहले फास्ट, ओके। देन हमारा 2 रेजिस्टेंस है, 6 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू 2 रेजिस्टेंस को क्या करना है, इसे हम पेपर में इस साइड में एलोंग साइड में इसे बनाएंगे हम, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, ठीक है। सो 20 वोल्ट ये जो अप्लाइड किया हुआ है, ठीक है, ये थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 6 ओम 4 ओम दोनों में अप्लाई हुआ है, ओके। 6 ओम में भी अप्लाई हुआ है और 4 ओम में भी अप्लाई हुआ है, ओके। सो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल 6 + 4 दैट इज 10 ओम, ओके। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 10 ओम मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, दैट इज 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, ओके। सो करंट, ओके। सो R इज इक्वल टू V बाई A, R कितना है 10, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, चल नहीं रहा है 20 है और बाय I, ओके। सो I इज इक्वल टू 20/10 दैट इज 2 एम्पियर, ओके। सो करंट मिल गया थ्रू द सर्किट कितना है, करंट थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर, ओके। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस में हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस। सो उसके लिए हमें क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस 6 ओम रेजिस्टेंस हमें चाहिए, भी कितना है और करंट तो चेंज नहीं होगा, दैट इज आई कितना है 2 एम्पियर है, आई 2 एम्पियर, करंट तो हमें फाइंड आउट किया है आई इज 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस आर कितना है, दैट इज 6 ओम है, ओके। सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट दैट V बाय आई इज इक्वल टू आर, V बाई इज इक्वल टू आर। सो V बाय आई करंट है 2 दैट इज इक्वल टू 6। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला है 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, दैट इज 12 वोल्ट, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 6 ओम रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायग्राम ऑफ सर्किट हमें ड्रॉ करना है पहले, कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ओके। 2 वोल्ट ईच मतलब 2 वोल्ट ईच मतलब 3 बैटरी है। सो 2 वोल्ट ईच मीन दैट मीन इट इज 6 वोल्ट, ओके। ईच ए जो 3 रेजिस्टेंस उसमें कनेक्टेड हुआ है उसमें एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम और एक है 12 ओम, ओके। सो फर्स्ट इज 5 ओम, देन 8 ओम, देन 12 ओम, ओके। एंड प्लग की मतलब स्विच कनेक्टेड हुआ है उसमें, देन रेजिस्टेंस प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड हुआ है, ओके। देन
एमीटर पुट करना है थ्रू दिस रेजिस्टर एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, मतलब 12 ओम थ्रू 12 ओम रेजिस्टर वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देन सो पहले हमें मिल गया जो बैटरी है 6 वोल्ट है। ओके, और एमीटर लगा के वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेट करेंगे क्या करंट कितना है। देखो करंट कैलकुलेट करने के पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट मिल गया। ओके, रेजिस्टेंस ये सभी सीरीज में है, तो सीरीज में होने से क्या होता है, ऐड होता है। ओके, दैट मीन्स 5 + 8 + 12। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 25 ओम। सो रेजिस्टेंस मिल गया हमें 25 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमें 6 वोल्ट। ओके, सो R इज इक्वल टू V/I। ओके, दैट इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V/I। ओके, V कितना है 6/I। ओके, सो I हमें मिलता है 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। सो करंट जो है उसमें सब में करंट सेम है, तो उसमें एमीटर में रीडिंग कितना दिखाएगा, 0.24 एम्पियर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में हमें क्या करना है, हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो करंट हमें मिला 0.25 एम्पियर। ओके, so this current will be same, that this much of current will flow through 12 ohm resistor, okay, which is connected in series। okay, so हमें फॉर्मूला पुट करना है, ohms लॉ पुट करना है, R इज इक्वल टू V/I। so R इज इक्वल टू V/I, that is 12 ohm इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड आउट करना है, एंड I इज 0.24। so we got potential difference V is equal to 2.88 volt, okay, across the 12 ohm resistor, 12 ohm resistor। that means potential difference through 12 ohm resistor is 2.88 volt। so question है calculate the equivalent resistance, calculate equivalent resistance, calculate equivalent resistance when two resistance of 3 ohms and 6 ohms connected in parallel, ओके, सो पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। सो R1 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 ओम, 3 ohms। ओके, R2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 ohms। ओके, सो फॉर्मूला क्या है पैरेलल रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 2 रेजिस्टेंस है इसलिए 2 लिखते हैं, अगर मोर था है इफ प्रेजेंट मोर देन 2 देन 1/R2, 1/R3, 1/R4 ऐसे लिखेंगे। ओके, सो then 1/R is equal to 1/3
plus 1 by 6, 1 by 3 plus 1 by 6. Okay, then 1 by r is equal to 6, 2 plus 1, that is equal to 3 by 6. Okay, so 1 by r is equal to 1 by 2. Then r will be equal to 2 ohm. Okay, then r is equal to 2 ohm. Next question, in the circuit question is, in the circuit diagram, given alongside, okay, we have to find total resistance, then current flowing through the circuit, and potential difference V across R1. ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ऐसे सर्किट डायग्राम है. Then this is 7.2 ohm, 7.2 ohm, this is 8 ohm, and this is 12 ohm. Okay, that is 6 volt. So R1, 0 R2, 0 R3. Okay, so like this given. Then we have to find out the इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जो 8 और 12 है दोनों पैरेलल है, तो पहले ये जो 8, 12 R2 और R3 उसका इफेक्टिव निकालते हैं. ये पैरेलल है, सो 1 बाई R विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ओके, then it will be equal to 1 by 8 plus 1 by 12, then it is 24, and 3 plus 2, 5 by 24. Then R becomes 24 by 5, that is equal to 4.8 ohms. Okay, so effective resistance is 4.5 ohm. Then these other two resistance सीरीज में 7.2. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस दिस इज 7.2 प्लस 4.8, दैट इज इक्वल टू 12 ओम. टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया 12 ओम. ओके, देन टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन 6 वोल्ट. टोटल करंट फाइंड आउट करना है. आर हो गया हमारा 12 ओम. देन आर इज इक्वल टू, यू नो दैट आर इज इक्वल टू V बाई आई है. देन आर दैट इज 12 इज इक्वल टू 6 बाई आई,
and 12 I is equal to 6, that means I is equal to 6 by 12, that is equal to 1 by 2, that is 0.5 ampere. Then potential difference across, we have to find out the potential difference across this 7.2 ohm resistance. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, उसका R1 कितना है 0.5 एम्पियर है, करंट उसका मतलब करंट थ्रो R1 इज 0.5 एम्पियर, और उसका रेजिस्टेंस R1 का है 7.2 ओम. सो अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट R इज इक्वल टू V by I, that means R is 7.2 is equal to V by 0.5, then V becomes 7.2 into 0.5 is equal to 3.6 volt. 0.6 volt. Okay, so potential difference 3.6 volt. Okay, so next question. So what will be the current drawn by, what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt. Okay, so देखेंगे. So we have given P and V, that is P is equal to 40 watt, then V is equal to 220 volt, and we have to find out the I, current find out करना है. Okay, so we know the formula P is equal to VI. Okay, P is equal to VI. Clear? So P is how much, 40 is equal to V. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 into I. So I becomes 40 by 220, yes or no, into by हो गया 40 by 220, that is equal to 2 by 11, that is equal to 0.18 एम्पियर. सो करंट हो गया 0.18 एम्पियर. देन नेक्स्ट we'll see एक इलेक्ट्रिक बल्ब so an electric bulb is rated 220 volt, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है V is 220 volt. ओके,
and 100 watt, that means P is equal to 100 watt. This is given. Okay, so question is if it is when it is operated on 110 volt. ओके, ये रेटेड हुआ है बॉल के ऊपर, बोला है कि 110 वोल्ट में उसको ऑपरेट किया जाएगा, देन पावर कंज्यूम्ड कितना होगा. क्लियर. सो ये क्वेश्चन है हमारा. ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे. देखो P और V है. ओके, रेजिस्टेंस R पहले फाइंड आउट करना है. तो हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू कितना है, V स्क्वायर बाई R. स्क्वायर बाई R. ओके, सो P दैट इज गिवन 100, that is equal to V square, that is 220 square by R. Okay, so R will be equal to 220 square by 100, that we get 484 ohm. Okay, so this 484 ohm will remain unchanged, मतलब रेजिस्टेंस उसका चेंज नहीं होगा. ओके, सेकेंड केस में देखेंगे. सेकेंड केस में कितना पावर है. सेकेंड केस में पावर कितना है. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन 110 वोल्ट. ओके, आर हमें मिल गया कितना, 484 ओम. ओके, 484 ओम. सो क्वेश्चन के हिसाब से P इज इक्वल टू कितना है, V स्क्वायर बाई आर. वी नो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. ओके, दैट इज इक्वल टू 110 स्क्वायर बाई आर इज हाउ मच, 484. दैट विल बी इक्वल टू 25 वाट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रेडियो सेट ऑफ 60 वाट. ओके, रेडियो सेट कितना है, 60 वाट. ओके, इट रन्स फॉर, मतलब कितना टाइम तक चालू हुआ, 50 आवर्स तक रन हुआ. ओके, देन उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E वी हैव टू फाइंड आउट. सो हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू हाउ मच, P इंटू टी, because P is equal to W by T. W is a form of energy by T, that is also energy. So E will becomes P into T. It will cross multiply, so P into T. Clear? Okay, fine. So हमें क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है किसमें, किलोवाट आवर में. किलोवाट आवर में. ओके, सो हमें 60 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है. कैसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, वाट टू किलोवाट बाई 1000 डिवाइड करेंगे, मतलब P गिवन 60 वाट, दैट इज बाई 1000. ओके, सो इट बिकम्स 0.06 किलोवाट. 0.06 किलोवाट. ओके, 0.06 किलोवाट. देन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 50 आवर्स है. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट ऑल्सो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E विल बी इक्वल टू 0.06 इंटू 50. ओके, दैट इज इक्वल टू 3 किलोवाट आवर. ओके, 3 किलोवाट आवर. सो इसमें क्या किया, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड किए. कॉमर्शियल यूनिट जनरली हम किलोवाट आवर में फाइंड आउट करते हैं. वी कैन कन्वर्ट ऑल्सो दिस किलोवाट ऑफ एनर्जी इनटू SI यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जूल. ओके, हाउ कैन वी कन्वर्ट, वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. सो 3 kilowatt hour will be equal to 3 into 3.6 into 10⁶ joule, that is equal to 10.8 into 10⁶ joule. Okay,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 4 एम्पियर दैट इज I इज इक्वल टू 4 एम्पियर है। ओके, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मतलब टाइम 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स है। देन हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग टाइम, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। ओके, सो पहले आते हैं हम E इज इक्वल टू P इंटू टी, वी नो दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। देन अगेन वी गॉट P इज इक्वल टू, हमें पता है VI, P इज इक्वल टू VI। ओके, दैट इज V इज इक्वल टू हाउ मच 12। ओके, देन करंट I इज इक्वल टू 4, दैट इट बिकम्स 48 वाट। ओके, 48 वाट, उसको हर वक्त हमें किलोवाट में चाहिए। सो बाय 1000 डिवाइड करने से कितना मिलेगा हमें 0.048 किलोवाट, 0.048 किलोवाट। ओके, सो देन टाइम को कन्वर्ट करना है आवर में, क्योंकि किलोवाट आवर में हमें चाहिए। टाइम टी है 10 मिनट्स। ओके, दैट इज इक्वल टू आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय 60 करेंगे तो आवर हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो इट दिस मच आवर्स, तो इट बिकम्स 1/6 आवर्स। ओके, देन वी विल फाइंड आउट E इज इक्वल टू 0.048। ओके, दैट इज हमें P मिला था। सो P इंटू T दैट इज इक्वल टू 1.6, सो इट बिकम 0.008 किलोवाट आवर है। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर इज 0.008 किलोवाट आवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय 5 एम्पियर करंट कैरिंग। सो करंट कितना है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्रॉम रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, दैट इज R इज इक्वल टू 2 ओम फॉर 30 मिनट्स, टाइम है 30 मिनट्स। सो दिस मच अमाउंट गिवन। सो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना क्या है, पावर। गिवन वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस को लेके हम पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर का एक फॉर्मूला है, क्या है, करंट और रेजिस्टेंस का I²R है। ओके, सो I कितना है हमारा 5 एम्पियर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इंटू R, ठीक है, दैट इज 2। ओके, दैट इट बिकम्स 50 वाट। उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में, मतलब 1000 डिवाइड करेंगे। ओके, सो इट बिकम्स 0.05 किलोवाट हो गया। ओके, देन हमें क्या करना है, टाइम कितना है, टाइम है 30 मिनट्स, आवर कन्वर्ट करना है। सो क्या करेंगे, 30/60, दिस मच आवर इट बिकम्स, दैट इज हाफ आवर, मतलब 0.5 आवर। ओके, देन मिल गया हमें एनर्जी E इज इक्वल टू हाउ मच, P इंटू T है। देन P इज 0.05 इंटू T है 0.5, दैट इट बिकम्स 0.025 किलोवाट आवर। ओके, सो दिस बिकम 0.025 किलोवाट आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग 350 वाट। ओके, पावर रेटिंग कितना है, 350 वाट है, पावर रेटिंग है 350 वाट, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे, मतलब T टाइम है 10 आवर्स पर डे। ओके, 10 आवर्स पर डे काम करता है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। इस मंथ में कितना डेज है, 30 डेज है, ठीक है। सो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना है,
3.44 किलोवाट आवर, मतलब 4 किलोवाट आवर का रुपीज़ है 3.4, तो कितना उसका रेट आएगा। ठीक है, ओके सॉल्व करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पता है E इज इक्वल टू क्या है, P इंटू टी। ओके, P है 350 वाट, 350 वाट, उसको हमें क्या कन्वर्ट करना है किलोवाट में, मतलब 350 बाई 1000 करेंगे, देन इट बिकम्स 0.35 किलोवाट। सो P हो गया 0.35 किलोवाट। ओके, देन T टाइम है 10 आवर्स डेली, सो 30 डेज है, मतलब 30 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम निकल जाएगा, दैट इज 300 आवर है। ठीक है, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, E इज इक्वल टू P इंटू टी, दैट इज P बिकम्स 0.35 इंटू टी है 300, देन इट बिकम्स 105 किलोवाट आवर, 105 किलोवाट आवर है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है रुपीज़ 3.40। ओके, हमारा किलोवाट कितना हुआ 105 किलोवाट आवर, उसका कॉस्ट कितना होगा 105 इंटू 3.40, देन इट बिकम्स 357। ओके, रुपीज़ 357। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट बल्ब का लिखा हुआ है, बल्ब के ऊपर रेटेड क्या है और 100 वाट बल्ब है। ओके, देन फाइंड आउट करना है हमें उसका रेजिस्टेंस कितना है, देन उसमें 5 सच बल्ब, इसमें कितना बल्ब है 5 बल्ब बर्न किया फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स तक बर्न हुआ, देन टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ हमें फाइंड आउट करना है, और हमारा कॉस्ट कितना होगा इफ रेट इज पर यूनिट 4.6, पर यूनिट को हमें 4.6 देना पड़ता है पर यूनिट, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, सो सॉल्व करेंगे। सो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए P हमारा है, P इज इक्वल टू हमें पता है V² बाई R। ओके, देन P इज इक्वल टू हाउ मच 100 वोल्ट, 100 वाट, देन V गिवन 200 वोल्ट है तो V² लिख दिए हम, R गिवन फाइंड आउट करना है, सॉरी R फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, दैट मीन्स 100 R इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, दैट इज 40, देन R विल बी इक्वल टू 400 ohms। ओके, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है E इज इक्वल टू हाउ मच P इंटू टी, P इज इक्वल टू गिवेन 100 वाट गिवेन, तो हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, बाई 1000 करने से मिलेगा 0.1 किलोवाट, देन टाइम इज गिवेन 4 आवर्स। ओके, सो एनर्जी कंज्यूम बाई 1 बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 0.1 इंटू 4, क्योंकि 4 आवर्स रन हुआ है, सो 0.4 किलोवाट आवर। ओके, सो एनर्जी कंज्यूम बाई 5 बल्ब के लिए कितना होगा, सो 0.4 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोवाट आवर। ओके, दैट इज 2 यूनिट। सो 1 यूनिट का कॉस्ट है 4.6, देन 2 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा 4.6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 9.20। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आई थिंक समझ में आ रहा है। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर है, ओके। ड्रॉ करंट आई कितना है 10 एम्पियर का, ओके, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यह है 220 वोल्ट सप्लाई से ड्रॉ करा है। देन व्हाट इज द कॉस्ट यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे। 5 आवर्स पर डे यूज हो रहा है, कितना डे तक, 30 डे तक, 30 डे तक यूज हो रहा है, ओके। कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का कॉस्ट है हमारा ₹5.2, ये कॉस्ट है, ओके। सो कैलकुलेट करेंगे। सो ये प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, पावर ऑफ द हीटर जो वैल्यू दिया है P इक्वल टू क्या है VI, ओके। सो 220 इंटू 10 वाट दिया हुआ, गिवन, इट इज गिवन, सो इट बिकम्स 2200, दिस इज वाट, लेकिन हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है क्योंकि उन्होंने किलोवाट आवर में चाहिए। सो बाई 1000 डिवाइड करने से हमें मिलेगा 2.2 किलोवाट, ओके। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू हमें पता है P इंटू T, ओके। देन P इज दैट इज 2.2 किलोवाट मिला है हमें, टाइम इज गिवन 5 आवर। सो फॉर 1 डे में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा इन 1 डे में होगा 2.2 इंटू 5, देन इट बिकम्स 11 किलोवाट आवर, ओके। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज में कैलकुलेट करेंगे। देन फॉर 30 डेज ड्यूरिंग 11 किलोवाट आवर इंटू 30, देन इट विल इक्वल टू 330 किलोवाट आवर, that is 330 यूनिट, ओके। सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹5.2, देन कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 5.2 इंटू 330, then it is equal to 1716 rupees, this much rupees, okay। so next question हमारा potential difference of 250 volt, okay, is applied across resistance R of 500 ohm in an electric iron, then we have to find out the current I and heat energy produced in joule in 10 सेकेंड में, ओके। सो पहले हमें क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। V by I इज इक्वल टू R, वी नो V गिवन 250 वोल्ट, सो 250 बाय I इज इक्वल टू 500, so I become 250 by 500, that is equal to half, that means 0.5 ampere। देन हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है H इज इक्वल टू I²RT, ओके। देन I 0.5 एम्पियर, ओके। R इज 500 ओम, देन T इज 10 सेकेंड। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मिलेगा हमें H इज इक्वल टू 0.5 होल स्क्वायर I², देन R 500, देन T इज 10, ओके। देन इट बिकम्स 1250 जूल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट दी हीट प्रोड्यूस्ड, हीट हमें फाइंड आउट करना है कितना प्रोड्यूस हुआ when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, देन I इज इक्वल टू Q दैट इज 96,000 बाई T 1 hour that is 60 into 60. Okay, then it becomes 26.67 ampere. Then by applying the resistance ohms law के R is equal to कितना है, V by I that is equal to 50 by 26.67 that is equal to 1.87 ohm. Then heat produced H is equal to I square RT that is equal to 26.67 square into R 1.87 into T that is 1 hour second में 3600. Then it becomes 4788.4 kilojoule. Okay, so this much amount of heat is produced. Next question देखेंगे, टू कंडक्टिंग वायर से क्वेश्चन में ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों जो वायर सेम मटेरियल में बनाई हुआ है, ओके, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ ऑल्सो सेम है, ओके, एंड डायमीटर, उनको क्या किया, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब फर्स्ट दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए, देन अगेंस्ट इन पैरेलल, पहले सीरीज में कनेक्ट हुआ, देन पैरेलल में हाँ कनेक्ट किया गया सर्किट में, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें कनेक्ट किए हम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई किए सेम है, ठीक है। देन हीट प्रोड्यूस, दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, हीट प्रोड्यूस का प्रोडक्शन का रेशियो, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, कैसे सॉल्व करेंगे। सो रेजिस्टेंस दोनों का गिवन है, रेजिस्टेंस सोच एक्स है दो वायर का, ओके, सो इक्वल रेजिस्टेंस है, जब सीरीज में कनेक्शन होगा क्या होगा, x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू R1 दैट इज 2x है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस हमें v अप्लाई किए, ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू v बाई 2x, ओके। देन जो हीट प्रोडक्शन होगा I स्क्वायर RT दैट इज इक्वल टू H1 दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर, दैट मीन्स IN स्क्वायर, देन R1 इंटू T, देन I हमें फाइंड आउट किया है v बाई 2x है, उसका v बाई 2x का स्क्वायर है, ओके, I स्क्वायर, देन R1 दैट इज 2x है, देन इंटू T, सो हमें मिला कितना, v स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू T, ओके, देन x कैंसिल हो गया, ओके, 2 कैंसिल हो गया 2, सो इट बिकम्स v स्क्वायर t बाई 2x, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट है, टू रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट किए, टू रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन किया गया, सो पैरेलल कितना होगा 1/x प्लस 1/x, देन उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है x बाई 2, ओके। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ I2 क्या हो जाएगा, v इंटू 2/x, मतलब I इज इक्वल टू v बाई r, r है x बाई 2, सो x बाई 2 है, तो x इधर चला गया, सो 2v बाई x हो गया, ओके। देन हीट प्रोड्यूस जो H2 है, लेट इट इज H2, देन H2 I स्क्वायर RT हमें पता है, सो I स्क्वायर I2 का स्क्वायर, देन R दिस इज R2, देन T, ओके। देन I हमें फाइंड आउट किया है कितना, v इंटू 2/x का स्क्वायर, देन R फाइंड आउट हुआ है x बाई 2 इंटू T, ओके, सो देन इट बिकम्स v स्क्वायर इंटू 4xt, सॉरी v स्क्वायर इंटू 4xt बाई x स्क्वायर इंटू 2, सो H2 हमें मिला v स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी बाई एक्स, इतना फाइनली मिला,
सो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो रेशियो के लिए क्या करना है हमें, H1/H2 करना है हमें। ओके, सो H1 है कितना है, V² इंटू T इंटू X बाय H2 2X इंटू V² इंटू 2 इंटू T। So then it will be equal to 1/4. Then the ratio is 1:4. So with this we completed maximum all the possible question of this chapter. If you are viewing the first time, then subscribe the channel, share with friends so that they can also get help this type of numerical. Okay, thank you.
है।